Greetings, everyone. We will be beginning with the event shortly. However, I would like to acknowledge that right from Team Mirchi, we have with us Mr. Parth Vasani, who is the Senior Video Content Manager for Digital Initiatives at Mirchi. We welcome you here, sir. Thank you for joining, and it means a lot to us. Thank you for having me. Really happy with this association, and I wish all the best to all the participants here. Thank you so much. Hello, guys. So we are beginning with the event. We request you all to kindly open your cameras so that we can have a better and a more lively event. Okay. बात यह है हवाओं को बताए रखना, जहां जश्न होगा दिया जलाए रखना, की है हिफाजत लहू देकर जिसकी हमने, उस वतन अजीम को रहती दुनिया तक कायम रखना. A very good afternoon to everyone who has joined us on this special event where we are celebrating the 75th year of independence. Happy pre-independence day, I would say. So I'm Prashant Tyagi and I'll be hosting the event, and there is Vanshita Kanda. She's going to be my co-host today, and we are thrilled to welcome you all to Azadi at 75, which is presented by Vision in collaboration with Kavyanjali. So Vision is the Media and Publication Society of Hansraj College, and Kavyanjali is the Poetry Society of Hansraj College. We are also really thrilled to present Mirchi as our entertainment partner and Mirchi Mehfil as our platform partner. We also have with us Mr. Parth Vasani, who is the Senior Video Content Manager of Digital Initiatives at Mirchi. You know what they say, her entertainment mein Mirchi hai. So guys, like, share and comment. The links are in chat box. To commemorate the 75th Independence Day, the theme of this event would be celebrating the beauty of India. Utsav Bharat Ki Khoobsurti Ka. This open mic competition will be judged by two of our esteems, Vishesh Patodia, Joint Secretary at Vision, and Ifra Fatima, Senior Advisor at Kavyanjali. The rules of the event are as follows. Each candidate will get to present their act in not more than 5, that is 4 + 1 minutes. The genre can be slam poetry, spoken words, or storytelling. The piece can be either in English or Hindi. Usage of unparliamentary language and controversial speech is prohibited. Judgment will be based on diction, content, grammar, and overall presentation. The results declared by the judges will be final and binding. The winners will get a shout out from the Vision, Kavyanjali, Mirchi Mehfil, and Mirchi World social media handles. Her entertainment mein Mirchi hai. So like, share, comment, kar do yaar. The links are in chat box. So the winners will also get to feature on Mirchi Mehfil YouTube channel and social media handles, and their performances to be played on Meethi Mirchi radio station that is hosted by RJ Shruti. After all the performances, the stage will be open to the audience to flaunt their talent and perform on the theme. So freedom should not be something that you have to deserve. It's something you just naturally have, something that no one can take away from you. So let's celebrate freedom. With this, let us commence our event, Azadi at 75, presented to you by Vision and Kavyanjali, along with our entertainment partner Mirchi and platform partner Mirchi Mehfil. So guys, right now I'm going to call out all the finalists we have one by one. Firstly, you have to give a little bit of introduction within the time frame, and then you have to give your performance. So first of all, we have Gaurav Kumar Gupta. मैं चंद पंक्तियों के साथ आज की महफिल की शुरुआत करूंगा, तो आप लोग और फरमाइएगा. तो मैं शुरुआत करता हूं कि किया था जो वादा माँ से वतन के लिए, किया था जो वादा माँ से वतन के लिए, छोड़ आया मैं घर अपने वचन के लिए. मुट्ठी में है सांस और हाथों में तिरंगा, मुट्ठी में है सांस और हाथों में तिरंगा, मैं बस जी रहा हूँ तिरंगे के कफन के लिए. नमस्कार सभी को, मेरा नाम गौरव कुमार गुप्ता है. मैं NIT राउरकेला 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ, परसुइंग EC इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग. तो आज की इस महफिल में मैं अपनी कविता रखता हूँ आप सबके सामने. गौर से सुनिएगा कि भारत, भारतीय संस्कृति और भारत की जो खूबसूरती है, मैंने उस पर ही कुछ लिखने की कोशिश की थी. तो मैं रखता हूँ अपनी कविता आप सबके सामने. नमस्ते, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल. नमस्ते, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल. इन तरीकों से हम पूछते हैं यहाँ पे हाल चाल.
भारत और भारतीय संस्कृति की जब बात आती है तो लाजमी है कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक नजर जाती है। 29 राज्यों में फैला है हमारा महान देश। 29 राज्यों में फैला है हमारा महान देश और हर राज्य में कुछ ना कुछ तो जरूर है विशेष। बात अगर धर्म की करे तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। बात अगर धर्म की करे तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कौन गैर है यहाँ, इनके लिए तो भारत ही है इनकी माई। त्योहार तो इस देश का आन बान और शान है, यही तो बढ़ाता हमारा सम्मान है। कुंभ के मेले में देश विदेश से लोग आते हैं, भारत की विशेषता हम उन्हें भी बताते हैं। गीता का उल्लेख तो बड़े बड़े वैज्ञानिक तक ने किया है। हम अगर देखें तो हमारी संस्कृति ने क्या कुछ नहीं दिया है। ईद में जिस खूबसूरती से चांद निकलता है, उसी खूबसूरती से छठ में सूरज ढलते हैं। भाई बहन के अटूट प्यार के लिए हम रक्षाबंधन मनाते हैं। दशहरा हो या दिवाली हम घरों को सजाते हैं। भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, दमहल या ओडिसी, इन्हीं नृत्य कलाओं से तो बंधा है कश्मीर से लेके कन्याकुमारी। और भारत का खाना लिट्टी चोखा का तो हर कोई है दीवाना। कुल्हड़ की चाय में जो मजा हमें आता है, 7वां जुबा तो है ही हमारे पास, 8वां जुबा भी मिल जाता है। हिंदी, उर्दू, गुजराती, मराठी और ना जाने कितनी भाषाएं बोली जाती है। इन सब की नींव तो संस्कृत ही कहलाती है। बिंदी, मेहंदी या गहना ये औरत का श्रृंगार माना जाता है। हमारा भारत हिंदुस्तान के नाम से भी जाना जाता है। इतना बड़ा देश और इतनी सारी संस्कृति, यही तो है ना इस देश की खूबसूरती। मैं, आप और हम सब एक वक्त से निभाते आ रहे हैं। ऐसे ही हम आपस में खुशियां बांटते जा रहे हैं। तो बस नमस्ते नमस्कार के ये तौर तरीके हम अपनाते रहे। अब तो दुनिया ने भी अपना लिया है, तो बस हम इसको निभाते रहे। शुक्रिया। Wow, Gaurav, that was indeed mesmerizing. Next up, we have Jaiprakash. नमस्कार आप सभी को। आज की ये महफिल बड़ी रंगीन और हसीन है, हमारे देश को और देशवासियों के को समर्पित। तो ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए मैं अपनी कविता शुरू करूँगा। एक लयबद्ध कविता है तो गा के ज़्यादा अच्छी लगेगी, तो सुनिएगा। केवड़ा ये केसरिया देश प्यारा, केवड़ा ये केसरिया देश प्यारा, रंगों की लहरों से भीगा देश प्यारा, रंगों की लहरों से भीगा देश प्यारा। हित हरित नवनीत आंगन चलित चंचल नील अंबर, हित हरित नवनीत आंगन चलित चंचल नील अंबर। सरिता कल कल सलिल धारा, घनानन बादल हमारा, घनानन बादल हमारा। केवड़ा यह केसरिया देश प्यारा, केवड़ा यह केसरिया। ओढ़नी आंचल समेटे सप्तरंगा, ओढ़नी आंचल समेटे सप्तरंगा। सनातन बहती चली अनंत गंगा, सनातन बहती चली अनंत गंगा। माटी की खुशबू हर एक मानुज में चमके, माटी की खुशबू हर एक मानुज में चमके। विभिन्नता में एकता धर्मों में दमके,
विभिन्नता में एकता धर्मों में दम के, कोयलों की मृदुल वीणा का दुलारा, कोयलों की मृदुल वीणा का दुलारा। सरगम भरा है, सरगम भरा है राष्ट्र यह सारा का सारा, केवड़ा ये केसरिया देश प्यारा। हिमालय की गोद में गौरव शिवालिक चोटियां, हिमालय की गोद में गौरव शिवालिक चोटियां, मालवा के वक्ष पर अद्भुतवादी घाटियां, मालवा के वक्ष पर अद्भुतवादी घाटियां। इस दिशा से उस दिशा तक चौतरफ उल्लास जन, इस दिशा से उस दिशा तक चौतरफ उल्लास जन। हर दिवस और हर घड़ी है उत्सवों में लीन मन, हर दिवस और हर घड़ी है उत्सवों में लीन मन। पथ भटिक अनजान राही का सहारा, पथ भटिक अनजान राही का सहारा। सतत स्वर्णिम और दृढ़ भारत हमारा, सतत सुंदर और दृढ़ भारत हमारा। केवड़ा यह केसरिया देश प्यारा, केवड़ा यह। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया। Well, that was beautiful, and now we have Sirsa Mishra. Okay, so I'm Shirsa Mishra from NIT Rourkela, second year electrical engineering, and I'll present my piece that is celebrating the beauty of India. It starts as, the land which is known as the cradle of life, to spread love and peace it always strives. Here torture and devastation has seen its years, it has earned a place of respect among its peers. Where the majestic mountains grant us shade, and the boundless oceans help in trade, where the lush green valleys filled with blooms, its exquisite fragrance the air perfumes, where aerial glaciers give birth to rills, and the sparkling rushing rivers it fills, where the ardent love of nature exists, where a myriad of life forms still persists. The deserts of the west are scorching hot, and oh, the backwaters I almost forgot, where peaceful coexistence of cultures rest, to the world harmony it does suggest. A land of colors as it is called, an assortment of religions here enthralled. Holi, Diwali, all festivities shine. There is mysticism, mythology, and places divine. The architectural styles from south to north differ and yet have substantial worth. The glorious temples, their intricate carvings, the gilded sculptures are artistic darlings. The enduring statues of deities were made, bejeweled, worshipped, with grandeur displayed. The oldest civilization and yet so humble. The British gave us 200 years of trouble, but still the nation rises high and tough. The praises for India are never enough. Thank you. Thank you, Shirsa. That was beautiful. Next up, we have Gracie Rai. Hello everyone, my name is Gracie Rai and I am from IP College and currently I am in second year of BNNC department. My topic is वो भारत की भूमि है। संस्कृति का पूर्ण निर्माण जहाँ है वो भारत की भूमि है। आध्यात्म जगत का विस्तार जहाँ है वो भारत की भूमि है। विविध सभ्यताओं का त्योहार जहाँ है वो भारत की भूमि है। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चार दिशाएं एक जहाँ है वो भारत की भूमि है। दुर्गा और दरगाह भी एक जहाँ है वो भारत की भूमि है।
गंगा घाट की आरती में बिस्मिल्लाह खां की शहनाई की गूंज जहाँ है वो भारत की भूमि है। चाणक्य का अर्थशास्त्र जहाँ है वो भारत की भूमि है। कलाम की कलम से निकला विज्ञान जहाँ है वो भारत की भूमि है। हर बदलते 2 कोस पे एक नई संस्कृति का उपहार जहाँ है वो भारत की भूमि है। मंदिर की नक्काशी में किसी इस्माइल का भी हाथ जहाँ है वो भारत की भूमि है। धरती का गुलिस्तान कश्मीर बसता है जहाँ वो भारत की भूमि है। साल बेग की भक्ति में जगन्नाथ विराजमान जहाँ है वो भारत की भूमि है। विश्व गुरु बनने का अखंड विश्वास जहाँ है वो भारत की भूमि है। गंगा जमुनी तहजीब का सदियों से प्रचार जहाँ है वो भारत की भूमि है। हर दिल में बसता भारत जहाँ वो भारत की भूमि है। धन्यवाद। Thank you, Gracie. It was really amazing. You literally talked about everything from like starting to last, and that is very, very impressive. Like right now, we have Preet Chaudhary. Good evening, everyone. I'm Preet Chaudhary. I'm a student of Hansraj College, and I'll be presenting my piece. नीलाद्री अरावली सह्याद्री की माला से ये देश अलंकृत है। श्वेत हिमाद्री की आभा से ये रोशन है। गंगा गोदावरी की आस्था सा पावन है। चंद्रभागा सिंधु की लहरों सा इसका यौवन है। ये मेरा देश, ये मेरा भारत है। वेदों के ज्ञान से, संतों के सम्मान से ये जागृत है। अनन्य कलाओं से ये देश ललायित है। मधुर संगीत विस्तृत साहित्य समेटे, भारती के वीणे की झंकार से ये आनंदित है। ये मेरा देश, ये मेरा भारत है। विश्व को बंधुत्व की राह दिखलाता है। सुधा को अपना कुटुंब समझता है। शांति करुणा की सद्भावना से परिपूर्ण ये मेरा देश, ये मेरा भारत है। धर्म अर्थ काम मोक्ष का ज्ञान लिए भक्ति भाव से पूर्ण है। सब में ईश्वर को देखने वाला, भ्रम का ज्ञान कराने वाला ये मेरा देश, ये मेरा भारत है। भारत देश पर मेरा सर्वस्व न्यौछावर है। भारत देश से मेरे जीवन में अर्थ है। भारत देश को मैं करता हूं नमन। भारत को अर्पित है मेरा संपूर्ण जीवन। धन्यवाद। Thank you, Preet. That was amazing. Next up, we have Sandhya Chauhan. Hello everyone, my name is Sandhya Chauhan and I'm a second year student of Zoology Honours. So today I'm going to share with you the story of beautiful India. So here it is. कलम के जो शब्द तुम्हारी रूह तक पहुंच जाए वो शब्द मैं हूँ। देश के 135 करोड़ देशवासियों के जज्बात मैं हूँ। फिजाओं में उड़ती हुई आजादी का जश्न मैं हूँ। तुम्हारे दिल में भरी देश प्रेम की भावना मैं हूँ। कण कण में मैं हूँ, कुरुक्षेत्र के रण में मैं हूँ। मैं हर इंसान के भीतर हूँ, हर नुक्कड़, हर गली, हर शहर में मैं हूँ। मैं इस देश भारत की आवाज हूँ। हाँ, वही आवाज जो हर एक हिंदुस्तानी के कंठ में वास करती है। और आजादी के 75वें वर्षगांठ पर मैं इस देश के युवा के सामने एक सुंदर सी कहानी व्यक्त करूंगी। उत्सव भारत की सुंदरता का। वसुधैव कुटुंबकम, सारी दुनिया एक परिवार है। ऐसी सोच और संस्कृति पर विश्वास रखने वाला मेरा देश महान है। आज से 5000 वर्ष पूर्व जब बाकी दुनिया खाने खोजने की तलाश में थी, उस समय विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता सिंधु घाटी उन्नति के शिखर पर थी, जहां कृष्ण की मुरली की धुन ने सबको प्रेम करना सिखाया, जहां राम ने मनुष्य को मर्यादा का पाठ पढ़ाया था, जहां एकलव्य जैसी गुरु भक्ति भी है और महान गुरु चाणक्य के तर्कों की शक्ति भी, जहां श्रवण कुमार ने माता पिता की सेवा का मंत्र सिखाया था, जहां गुरु गोविंद जी ने खालसा चलाया था। वो देश है भारत। आज विज्ञान का स्वरूप जरूर विकसित हो गया होगा, परंतु भारतीय विज्ञान की परंपरा विश्व की प्राचीनतम वैज्ञानिक परंपराओं में से एक है। खगोल विज्ञान, अंकगणित, भौतिकी, चिकित्सा, आयुर्वेद, रसायन विज्ञान, इन सभी क्षेत्रों में सबसे आगे था भारत। और आर्यभट्ट ने तो पूरी दुनिया को गिनती सिखाई थी, शून्य का आविष्कार करके। शांति का संदेश तो हमेशा से भारत ने दुनिया को सिखाया ही है। अपने इतिहास में भारत ने कभी भी किसी भी देश पर हमला नहीं किया है, लेकिन हाँ, जब जब किसी ने हम पर अत्याचार किया है तो इस देश के वीरों ने परशुराम की भांति अपनी भारत माँ की रक्षा में हथियार जरूर उठाए हैं। जहाँ अफगान और मुगलों से पृथ्वीराज चौहान, शिवाजी और प्रताप ने लोहा लिया, वही मंगल, लक्ष्मी, भगत, बोस, शेखर और राजमहान ने अपने प्राण देकर
अपने देश को आजाद करवाया। दुश्मन भी थर्राया था जब जब आंख हमारी ओर उठाई थी। भारत माँ के वीरों से अंग्रेजों ने मुंह की खाई थी। इतनी यातनाएं और कठिनाइयों के बाद भी आजादी का सूरज हमने देखा है। और बात करें हमारी सभ्यता की, तो हाथ जोड़कर नमस्ते करने का प्रचलन तो सदियों से भारत में था। और इस कोविड काल में तो विश्व ने अभिवादन का सबसे सही और बेस्ट तरीका यही माना है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, सबसे बड़ा लिखित संविधान और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी भारत ही है। एशिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क भी भारत में ही है। जहां पूरे विश्व में 8000 बोलियां बोली जाती हैं, वहां अकेले भारत में 1600 के करीब भाषाएं बोली जाती हैं। मेरी भारत की सुंदरता तो इसी में है कि यहाँ विभिन्न संस्कृतियां और धर्मों का संगम है। विभिन्न प्रकार की वेशभूषाएं, भाषाएं, नृत्य शैली, खान पान, यहाँ की वादियां, खेत खलियान, समुद्र और नदियां भारत की विविधता दर्शाता है। यहाँ वाहिगुरु की अरदास और ईसा मसीह की ब्लेसिंग्स हैं, तो मन को शांत करने वाली बुद्धा के वचन भी है। यहाँ रहीम की खीर है तो राम का प्रसाद भी, और ऐसी एकता दुनिया में शायद ही कहीं और आपको मिलेगी। तो ये थी भारत की सुंदरता की कहानी, खुद भारत की जबानी। शब्द कम पड़ जाएंगे, लेकिन इस देश की सुंदरता को पूर्णतया बयान हम नहीं कर पाएंगे। भले ही आज इस देश में सांप्रदायिकता है, भेदभाव, जातिवाद और बाकी झगड़े हैं, परंतु जब बात आती है इस देश की रक्षा और सुरक्षा की, तो मेरे देशवासी ये सब मलाल भूलकर अपने देश को आगे रखना जानते हैं। और अंत में मैं बस अपने सपूत अटल बिहारी वाजपेयी की कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, ये जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। ये वंदन की धरती है, ये अभिनंदन की धरती है, ये अर्पण की धरती है, ये दर्पण की धरती है। हम जिएंगे तो सदा इसी के लिए और मरेंगे तो सदा इसी के लिए। और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हुई हमारी अस्थियों को कोई कान लगा के सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। और इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेना चाहूंगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक you, Sandhya. It was really nice. Sandhya, that was definitely wholesome. Coming up is Mohit Som. या देवी सर्वभूतेषु मातृभूमि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं मोहित सोम 2 पंक्तियों से अपनी भूमिका की शुरुआत करता हूँ कि संभाल कर तराने हिंद के इस दिल में रखता हूँ, कि संभाल कर तराने हिंद के इस दिल में रखता हूँ। है अंगार इस दिल में तभी गीतों में अंगार लिखता हूँ। नहीं खेली मेरी जवानी किसी की जुल्फों से अभी, नहीं खेली मेरी जवानी किसी की जुल्फों से अभी। जो खेलते हैं सरहद पर खून की होली, मैं उन्हीं के लिए श्रृंगार लिखता हूँ, मैं उन्हीं के लिए श्रृंगार लिखता हूँ। आज की पूरी भूमिका मैंने उनके ऊपर न्यौछावर करी है जिनकी वजह से हम सारे उत्सव और सारे फेस्टिवल्स बनाते हैं, जो हमारे शहीद और हमारे जवान। तो उन्हीं जवानों के लिए मैंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं जो मैं आप सभी के समक्ष गुनगुनाना चाहता हूँ। मेरे देश का जवान मेरी आन बान है, इस देश के लिए मेरी जान निसार है। मेरे देश का जवान हर जगह खड़ा हुआ, मेरे देश के जवान को मेरा सलाम है। मेरे देश के जवान का दुनिया भर में नाम है, भारत के जर्रे जर्रे का उनको प्रणाम है। मेरे देश के जवान ने कभी हार ना मानी, मेरा उन्हें प्रणाम ये कुर्बान जवानी। मेरे देश एक दुल्हन जवान श्रृंगार है, मेरे देश के हर एक जवान को प्रणाम है। मेरे देश के हर एक जवान को प्रणाम है। जो मेरे देश के जवान हैं वो अपने दुश्मन को दुश्मन नहीं अपितु मित्र समझते हैं। तो उन मित्रों के लिए कुछ पंक्तियां लिखी है जो आप सभी के समक्ष रखना चाहूंगा। मेरे है हिम्मत तेरी जितनी तू आजमा ले, करना है जितना प्रयास तू आजमा ले। मेरे देश के जवानों के खून में अंगार है, हर एक माँ के दूध में भरा खूब फौलाद है। तू कर छाती चौड़ी, तू कर सीना चौड़ा, जल्दी धरती पर टिक जाएगा। मेरे देश के जवानों के आगे तो टिक नहीं पाएगा, मेरे देश के जवानों के आगे तो टिक नहीं पाएगा।
बहुत प्यारी पंक्तियां हैं जो आप सभी के समक्ष गुनगुनाना चाहूंगा, और यह पंक्तियां आज की युवा पीढ़ी के लिए है, उनको जगाने के लिए। संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, भला है जिसमें देश का वो काम सब किए चलो। युग के साथ मिलके तुम कदम बढ़ाना सीख लो, एकता के स्वर में मिलके गुनगुनाना सीख लो। भूल कर भी मुख से जाति पंथ की ना बात हो, भाषा प्रांत के लिए कभी ना रक्तपात हो। फूट का भरा घड़ा है फोड़ कर बढ़े चलो, भला है जिसमें देश का वो काम सब किए चलो। संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, भला है जिसमें देश का वो काम सब किए चलो। आ रही है आज चारों ओर से यही पुकार, त्याग हम करेंगे मातृभूमि के लिए अपार। कष्ट जो मिलेगा मिल बांट के सहेंगे हम, देश के लिए सदा जिएंगे और मरेंगे हम। देश का ही भाग्य अपना भाग्य है ये सोच लो, भला है जिसमें देश का वो काम सब किए चलो। संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, भला है जिसमें देश का वो काम सब किए चलो। सभी को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। That was amazing. And now I would like to acknowledge that we have our own teacher, like she's from my department, Dr. Farhad Jahan ma'am is here. She's the convener for the Poetry Society, Kavyanjali. Welcome, ma'am. Thank you for joining us. And at last we have Vanshika Anand. जी, सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार और सभी को स्वतंत्रता दिवस आने वाली है तो उसकी बधाई। तो पहले मैं इस फैक्ट को एक्नॉलेज करना चाहूंगी कि मैं भारत में मेरा जन्म हुआ है, तो ये मेरे पीस का हिस्सा नहीं है, जस्ट फॉर द इंट्रोडक्शन कि खुश नसीब हूँ मैं, मेरा जन्म भारत में हुआ है। खुश नसीब हूँ मैं कि मेरा जन्म भारत में हुआ है, जहाँ आज भी जन्मों जन्मों का नाता होता है, त्योहारों पर आज भी हर जगह अपनों का तांता होता है। जब भी कोई कहता है ना कि मैं भारतवासी हूँ और भारतवासी बदल नहीं सकते, तो बहुत सुकून मिलता है, क्योंकि हाँ, हम अपने देश से प्यार करना छोड़ नहीं सकते। इसी के साथ मैं अपनी कविता शुरू करना चाहूँ। आजादी, आजादी सुना है गली गली में इस शब्द के नारे गूंजा करते थे। देश की आन को बचाने के लिए सैकड़ों लोग रोज मरा करते थे। था वो भी एक जमाना जब जेल में ही जीवनी लिखी जाती थी। वो संघर्ष और उस क्रांति की आंधी आज भी दिल दहला दिया करती है। वो संघर्ष और उस क्रांति की आंधी आज भी दिल दहला दिया करती है। वो देश के तिरंगे को शान से लहराता देख, वो देश के तिरंगे को शान से लहराता देख, हमारे दिल में देशभक्ति को आज भी सहला दिया करती है। बहुत हो गया, बहुत हो गया। 75 वर्षों तक देश में बहुत कमियां हम सब ने निकाली हैं। आपको क्या बताऊं मेरे भारत का नूर कैसा है, मेरे लिए तो आज ही दिवाली है। वो आसमान में पतंग उड़ाने से लेकर चांद तक पहुंच जाना, वो आसमान में पतंग उड़ाने से लेकर चांद तक पहुंच जाना, वो दुनिया में हर चीज को पाना। क्या कहूँ, वो जनगण मन मुझे सबसे ज्यादा सुरीला लगता है। हाँ, एक भारतीय कहलाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज भी जब पहली संसद का दृश्य सोचती हूँ, रातों तक जाग के संविधान बनाने की बात सुनती हूँ, तो आंखें सुकून से नम हो जाती हैं। जैसी खुशबू मेरे देश की मिट्टी से आती है, हवा में देशभक्ति का नशा सा खींच लाती है। अब बात करूँ स्वर्ग से देख रहे उन सेनानियों की, तो शायद वो आज भी देश की आजादी को लेकर चिंतित हैं। गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार तो हर आजाद मुल्क की समस्या है। गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार तो हर आजाद मुल्क की समस्या है। मुश्किल बात तो ये है जनाब कि बुरी राजनीति न चाहते हुए भी हमारी देश की सदस्य है। न मानना नेताओं के वादे सुना है खोखले होते हैं, जीतने के बाद पूछते नहीं, सिर्फ चुनाव से पहले रोते हैं। वो भी ठीक है, लेकिन इस खून खराबे से मेरे देश का मान कम ना करना। वो भी ठीक है, लेकिन इस खून खराबे से मेरे देश का मान कम ना करना। मेरे देश का लिहाज कर लो यारो, नेता तो रुपयों में बिक जाता है। सिर्फ हम नहीं,
सिर्फ हम नहीं, देश भी हमारे साथ संघर्ष कर रहा है, कदम उठा के वो भी हमारे साथ साथ चल रहा है। न सवाल उठाना मेरे देश की सच्चाई और ईमानदारी पर, देश मेरा सबसे निराला है, जब जब टूट के बिखरी हूँ मेरे देश ने ही मुझे संभाला है। वंदे मातरम आज भी मेरी पहचान है, वंदे मातरम आज भी मेरी पहचान है, मेरी आबरू मेरे देश की शान है, मेरी आबरू मेरे देश की शान है। धन्यवाद। इसको अंत करने के लिए सिर्फ 2 पंक्तियां। खूबसूरती क्या है चीज आप ये आज जान लीजिए, खूबसूरती क्या है चीज आज आप ये जान लीजिए, स्वर्ग धरती पर कहीं है तो वो भारत है, अब आप ये बात मान लीजिए। धन्यवाद। Wow, Vanshika, that was beautiful. You all inspired me so much. I would like to quote दायापयानी सरकार, हर साल आज़ादी मनाने से ही तुम आज़ाद देश का आज़ाद नागरिक नहीं बन जाओगे, जिस दिन अपनी सोच को आज़ाद करोगे उस दिन तुम असल में आज़ादी का जश्न मनाओगे। Guys, now we are opening the stage for everyone. Like the audience can count their talent. So come on, volunteer, and the stage is all yours. Good afternoon, everyone. Am I audible? Yes, Umesh. This is Umesh Kumar. Okay, so myself, Umesh Kumar, a student of BSc Honors Physics second year at Hansraj College. So I am having a poem which is entitled as मुझे गर्व है. So I'm starting it. जिस देश में जन्मे कई वीर, महाराणा प्रताप, अशोका और जहांगीर, यहाँ जन्मे महावीर और महात्मा बुद्ध, इस धरती को कर दिया पावन और शुद्ध। मुझे गर्व है मेरे देश पर, मुझे गर्व है मेरे भारत पर। जिस देश में जन्मे कई विद्वान, विदुर और चाणक्य जैसी महान, इस देश में धर्म अनेक हैं परंतु राम रहीम सब एक हैं। मुझे गर्व है मेरे देश पर, मुझे गर्व है मेरे भारत पर। जहाँ मीराबाई, कबीर और गुरु नानक ने लोगों को धर्म का सही पथ दिखलाया, वहीं स्वामी विवेकानंद जी ने विदेश में देश का मान बढ़ाया। मुझे गर्व है मेरे देश पर, मुझे गर्व है मेरे भारत पर। सीवी रमन और अब्दुल कलाम ने विज्ञान के क्षेत्र में लोहा मनवाया, वहीं आर्यभट्ट और रामानुजन ने गणित में अपना परचम लहराया। मुझे गर्व है मेरे देश पर, मुझे गर्व है मेरे भारत पर। जब जब आया संकट भारत माँ पर, वीर सैनिकों ने की रक्षा अपनी जान गंवाकर। किसान ही तो भारत का स्वाभिमान है, पूरे देश का पेट भरते हैं देकर अनाज रुपी वरदान। मुझे गर्व है मेरे देश पर, मुझे गर्व है मेरे भारत पर। गांधी जी, सरदार पटेल और चाचा नेहरू ने आज़ादी का प्रकाश फैलाया, वहीं भगत सिंह, मंगल पांडे और चंद्रशेखर आजाद ने क्रांति की आग को और भड़काया। मुझे गर्व है मेरे देश पर, मुझे गर्व है मेरे भारत पर। जब बात लक्ष्मीबाई और सरोजिनी नायडू की होती है, तब हम देशवासियों की छाती गर्व से चौड़ी होती है। कल्पना चावला और लता मंगेशकर के कार्यों को कौन भूल सकता है। इन नारियों के योगदान के समक्ष पूरा विश्व नतमस्तक होता है। मुझे गर्व है मेरे देश पर, मुझे गर्व है मेरे भारत पर। भारत ने पैदा किया कई रत्नों को, जिनके योगदान पर गर्व है पूरे देश को। युगों युगों तक करेंगे इन्हें याद, जिन्होंने बनाया भारत को समृद्ध और आबाद। मुझे गर्व है मेरे देश पर, मुझे गर्व है मेरे भारत पर। थैंक यू सो मच एवरीवन। It was a very beautiful piece, Umesh. I'm really impressed. Like, it was really. And guys, we'll be announcing the results super soon, just like in a bit. And I would like to invite someone else who want to showcase their talent right now. I guess Rajat has volunteered in the chat. Rajat, the stage is all yours, rather the virtual stage. Thank you. So I am from Hansraj College, History Honors, second year student, and my poem is titled भारत की आत्मकथा। मैं भूगर्भा अग्नि की हलचल में, शौर्य सरोवर में टलमल, उठती लहरों का अथाह भीषण प्रलयंकर सा प्रवाह। मैं अमित ज्वाल अतृप्त आग में, डमरू का भैरवी राग, शिव के तांडव का कोलाहल। मैं सृष्टि का वह आदि अनल, जिसने की ब्रह्मांड अचल में जीवन की पहली हलचल। मैं वही आग में वही राग, उठती जिससे धरा माग, पोषण का वरदान अब है, कहती जय भारत जय जय।
जय रुद्र भूमिरी अपराजय, जय अंशुमान प्रज्ञा अक्षय, जय अवतारों की धरा अजय, जय भारत भू हो तेरी जय। वंदन करती है वसुंधरा, जय करती धरती सारी है, मैं वह किरीट जिस पर ईश्वर ने पावन माँ गंगा उतारी है। मैं जग का विराट उजला ललाट, मैं हूँ वह पथ में वही बाट, मानवता ने चलकर जिस पर पाया जीवन का ज्ञान अमर। तृष्णा के कंटक पथ पर जब जब चलकर मानव जर्जर होता आया, मैं बना छाह, म्लान पथिक को उठा बाह, दिखलाई जग की राह नवल, दिखलाई दीप्ति नव ज्योति धवल, सृजन किया अवशेषों पर चल, मैं तो परहित ही सदा गरल, पीयूष बना पीता आया, जीवन सहस्त्र जीता आया, पर काल चक्र घूमा गति से, मैं अपने अपनों की मत से उच्चासन अपना खो बैठा, रिपु मेरा शासक हो बैठा। अगणित भग्न किलों के भीतर प्राणाहुति के निष्कर्ष हुए, अरे मंद मति अरे विकल हुए, कण कण हर क्षण संघर्ष हुए, वे अजर वीर वे अमर लाल, देकर मेरे हित बल विशाल, सो गए अंक में निद्रा में जो, मैं उन वीरों का रुधिर लाल। अब पुनः बुद्ध में पुनः वृत्त, अब पुनः बुद्ध में पुनः क्रुद्ध, अब तक था जो शौर्य रुद्ध अनियंत्रित बाहर आता है, नव गर्जन हुंकार सुनाता है, नभ में अवनव रश्मि है, फूट रही अरुणाई है, शैशव की अंगड़ाई है, यह यौवन है तरुणाई है, वह विशुद्ध चेतना जाग रही है, सदियों से जो लुप्त रही, अब फिर वह वंदन आराधन देखो करने लगी मही, अब फिर वह वंदन आराधन देखो करने लगी मही। धन्यवाद। Thank you. Wow, Rajat. The Amazing. content as well as delivery was beautiful. I think Simran wants to present. Yes, can I? Yeah. यहाँ की हर गली के नुक्कड़ और ऑलमोस्ट हर बाजार के चौराहे पर मैंने इसकी अलग अलग कहानी सुनी है। कभी बच्चों के इतिहास की किताबों में तो कभी बूढ़ों से आंखों देखी जुबानी सुनी है। अपने में यूं ही इतने बदलाव देख कि कभी उदासीन तो कभी खिलखिला कर हंसता है। थोड़ी सी मैं इसमें, थोड़ा सा ये देश मुझ में बसता है। आजकल यूं ही चलते चलते मैंने सड़कों पे लहराते तिरंग देखे हैं। न जाने क्यों इस मौसम में मैंने लोगों के बदलते ढंग देखे हैं, जो पूरे साल छोटी छोटी बातों पे लड़ते झगड़ते हैं। मैंने 15 अगस्त को वो लोग भी एक दूसरे के संग देखे हैं। सबकी मंजिल वही, आजादी और तरक्की, पर हाँ शायद सबका अलग सा रास्ता है। थोड़ी सी मैं इसमें, थोड़ा सा ये देश मुझ में बसता है। कल 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस। पर मैं आपको बताऊं कल क्या होगा। कल अच्छे खासे एक दिन की शुरुआत होगी, शायद थोड़ी आसपास की बात होगी, फिर हम सबके फेसबुक और व्हाट्सएप खुलेंगे और हम एक दूसरे को 15 अगस्त की बधाई देंगे। हर कोने पे मुझे नेताओं के भाषण सुनाई देंगे। हवाओं में पतंगे लहराएंगी, एक दिन के लिए ही सही, पर यहाँ की फिजाएं बदल जाएंगी। कई साल पुरानी याद होगी, शायद इस बीच स्वतंत्रता सेनानियों की भी कुछ बात होगी। लोगों में एक अलग सा जज्बा होगा, भारतवासी होने का अपना ही एक रुतबा होगा। हर कोने में आजादी का त्योहार होगा, हर दिल में देश के लिए प्यार होगा। पर ये प्यार बस एक दिन का हकदार होगा नहीं। यहाँ के आसमान में भी उम्मीद की किरण निकलती है, यहाँ की मिट्टी में भी अस्तित्व की छवि झलकती है। ये हवा का झोंका भी दिल में अपनेपन का एहसास सा भरता है। थोड़ी सी मैं इसमें, थोड़ा सा ये देश मुझ में बसता है। देश प्रेम का मतलब ये नहीं कि कोई और देश हमसे कम है। हम जहाँ रहते हैं वहां कोई सिर्फ मैं नहीं, बस हम हैं। 72 साल में सरकार ने क्या काम किया ये हम सबको याद रहता है। अरे अपनी खुद की गलतियां ये इंसान कब कहता है। उसने अगर गुनाह किया तो तुमने कौन सा उंगली उठाई। एक गलती उसने की तो एक गलती तुमने छुपाई। यहाँ कोई संस्कारों की बात करता है तो कोई नफरत फैलाता है, पर सच तो ये है कि देश को उसका हर एक नागरिक चलाता है। केसरी और बॉर्डर जैसी फिल्में देखकर हर रो हम सब सकते हैं, पर कोई कुछ मुसीबत के वक्त कहता नहीं। सच तो ये है कि हम इस देश में रहते हैं, पर ये देश हम में रहता नहीं। इसलिए कल फिर से एक नई दिन की शुरुआत होगी। थोड़ी शायद आसपास की बात होगी। नया दिन हमें फिर कुछ नया सिखाएगा। 16 अगस्त को तिरंगा जमीन पर नहीं आसमान में लहराएगा। जाग जाएंगे वो भी जो अब तक सो रहे हैं। अब आवाज उठी है तो आगाज भी हो रहे हैं। ऐसी नई राहों पर यहाँ का हर शख्स कुछ रहेगा तो कुछ हंसेगा। थोड़े से हम इसमें, थोड़ा सा ये देश हम सब में बसेगा, हम सब में बसेगा।
Thank you. That was beautiful, Simran. So guys, now I would like to invite our judges, Vishesh and Ikra, to take over the नमस्कार सभी को। मैं सभी प्रतिभागियों को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्हीं के कारण आज ये हमारा आयोजन सफल रहा। मैं रिजल्ट अनाउंस करने से पहले चंद पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहता हूं, जो कि हमारे कवि जयशंकर प्रसाद ने लिखी, जिनमें उन्होंने भारत के प्राकृतिक सौंदर्य और भारत की सांस्कृतिक गौरव को इसके माध्यम से प्रस्तुत किया है। अरुण ये मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। सरल तामरस गर्भ विवाह पर नाच रही तरुषिका मनोहर। चिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। लघु सुरधुन से पंख पसारे शीतल मलय समीर सहारे। उड़ते खग जिस और मुंह के समझ नीड़ निज प्यारा। बरसाती आंखों के बादल बनते जहां भरे करुणा जल। लहरें टकराती अनंत की पाकर जहां किनारा। हेम खुम्बले उषा सवेरे भरती ढुलकती सुख मेरे। मंदिर ऊँगते रहते जब जगती जगकर रजनी भरतारा। मैं परिणाम के लिए इफ्रा को आमंत्रित करना चाहूंगा। Thank you, Vishesh. I know you all must be waiting for the results, and I'm not going to extend it any further. And without further ado, let me just announce all the results. So we have 3 winners amongst ourselves, the first, second, and third. First, I'd like to ask you people for guesses. Does anyone have any guess? Mohit Som. Okay, so for the first winner, drum rolls, we have Sandhya Chauhan. Congratulations, Sandhya. Your poetry was fabulous. The content matter was great. And for the second winner, we have amongst us Jay Prakash. Huge hearty congratulations to you, Jay. And for the third winner, we have Vanshika Anand. A beautiful poetry. Congratulations to you too, all the 3 winners. And all the other poetries were fabulous too. We loved the content. They were presented very nicely. You people sung very nicely. I loved your voices too. And keep writing, keep performing. That's the spirit. Now I would like to invite if Pratna, if you are here, आप 2 शब्द हमारे। Hello, Prashant and all. Actually, good afternoon to all the students. Actually, I'm not feeling well, है ना? Before 2 days, I had done my surgery. That's why I'm not comfortable. But if you want, I can say a few lines for you. कि बन के फूल देखो हर कली अब मुस्कुराई है। कि बन के फूल देखो हर कली अब मुस्कुराई है। नई खुशबू में लिपटी आपने वो खुशियाँ पाई हैं। आपके होठों पे एक नई मुस्कान आई है। मुबारक हो आप सबने बड़ी मंजिल पाई है। Congratulations, विजन एंड काव्यांजलि टीम। चंद लाइनें मैं और कहना चाहती हूँ, क्योंकि 15 अगस्त से जुड़ा हुआ इवेंट है, जिसका उन्वान है मेरे प्यारे वतन। चांद मुखड़ा तेरा फूल तेरा बदन। चांद मुखड़ा तेरा फूल तेरा बदन। मेरे प्यारे वतन मेरे प्यारे वतन। देवताओं का वरदान तेरी जमी। मेरे जीवन का अरमान तेरी जमी। देवताओं का वरदान तेरी जमी। मेरे जीवन का अरमान तेरी जमी। मेरी चाहत मेरी जान तेरी जमी। तू मेरी आरज़ू का महकता चमन। मेरे प्यारे वतन मेरे प्यारे वतन। नाचती गुनगुनाती हवाएं तेरी। झूमती मुस्कुराती फजाएं तेरी। मुझको बेखुद करे ये बहारें तेरी। तुझसे महके हमेशा मेरी जान वतन।
मेरे प्यारे वतन, मेरे प्यारे वतन। जिसका सानी नहीं वो मेरा देश है, जिसका सानी नहीं वो मेरा देश है, सारे देशों से बढ़कर मेरा देश है, बाकी वीरों को प्यारा मेरा देश है, रांझे हीरों को प्यारा मेरा देश है, जर्रा जर्रा है जिसका चमन ही चमन, मेरे प्यारे वतन, मेरे प्यारे वतन। चांद मुखड़ा तेरा, फूल तेरा बदन, मेरे प्यारे वतन, मेरे प्यारे वतन। Thank you so much. Congratulations all the winner and organizing team and all the participants. Thank you so much. Very, very much. Thank you, ma'am. It was beautiful. Like, it was so mesmerizing and I'm literally processing that. Vanshika, over to you. So we have come to the end of this event. This event was indeed a huge success. We would like to thank all our participants for putting up a great show. We hope you all enjoyed and thank each and every one of you for making this day memorable. We also thank our entertainment partner Mirchi and platform partner Mirchi Mehfil for adding on to the thrill to the event. Har entertainment mein Mirchi hai. Like, share and comment. We would like to thank our conveners and Mr. Parth Vasani. We give the heartiest congratulations to the winners and finally wish you all a very happy Independence Day. Thank you. Thank you guys for joining. Very happy Independence Day to everyone. Thank you so much.